मुंबई के बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर में 3 से 5 जून 2026 तक आयोजित वर्ल्ड ऑफ कंक्रीट इंडिया 2026 के 12वें संस्करण का भव्य शुभारंभ हुआ। इन्फार्मा मार्केट इन इंडिया द्वारा आयोजित इस प्रदर्शनी में फ्री कॉस्ट टेक्नोलॉजी, कंक्रीट, सीमेंट, निर्माण उपकरण, कंस्ट्रक्शन, केमिकल और एआई आधारित समाधानों का प्रदर्शन किया जा रहा है। उद्घाटन समारोह में नीति निर्माताओं, उद्योग विशेषज्ञों और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र के प्रमुख प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जो भारत के निर्माण क्षेत्र में इस मंच की बढ़ती अहमियत को दर्शाती है। Then we have 2 units, one in Bhubaneswar and one in Ahmedabad also. So the main idea or main focus or vision or mission of this our institute is basically all kind of research for cement, concrete and construction sector. So if I start, we work on where is the raw material. For example, limestone is required for manufacturing of cement. So we work on the mining of limestone. Then coming to the cement plant. So in cement plant we work on energy, environment, production line, everything we work on. How to increase the quality of the cement, how to increase the efficiency. Then we also work on concrete side. So once cement is manufactured, basically it becomes a raw material for concrete manufacturing. So we work on all aspects of concrete. When the concrete ends, it also creates a lot of waste. We call it construction and demolition waste. We also work on C&D waste, construction and demolition waste. So we are working basically from cradle to gate for entire covering the entire spectrum of cement, concrete and infrastructure. So as I mentioned, we are the research organization. So primary duty is number 1, solve any of the existing problem with the industry, number 1, and then also to look into that what are the problems we are going to face in the next coming decades. For example, do we have enough limestone available for manufacturing of cement? How industry will be growing in the next 20-30 years or so. So on all those aspects, on all those future roadmaps, policy advocacy, then major issue is sustainability, that how sustainably this particular sector is and how to reduce the carbon footprint of cement, concrete and infrastructure. So all these aspects we are working. And as a part of that, I just give you one example. Few decades back, only you had a cement that is called OPC. Now whatever cement you are using is basically PPC, which contains 35% fly ash. There is another cement, PSC, Portland slag cement, that contains 70 to 75% slag. So you do not know, the end user doesn't know, but as a scientist or engineer, all these fly ash or slag are the industrial waste, and we are basically mixing with the cement without compromising the performance, durability and the competitiveness. So our mandate is basically to produce a cement that has a lower carbon footprint. So in future we will come out with more and more type of cement, whether it is composite cement, Portland dolomite cement, Portland limestone cement. So newer cement will come. So that will have a lower carbon footprint of construction sector. So all this is area basically we are working on. Apart from that, we are also working in terms of projects with the cement industry. Any existing problem if they have, then how to solve that. Thank you very much. Thank you, Dr. Thomre. Namaskar, we all know that recently a huge organization program of pyramids, roads. As we all know that Mumbai was formed by Sir Adams with geographical and topographical conditions, and even we receive rainfall of about 3,000 to 3,500 every year. So huge rainfall
we receive every year. And in addition to that, all types of traffic is flying in the city, whether it is single axle, double axle, multiple axle, tandem axle, all types of axle loads are flying on Mumbai roads. So, if you compare Asphalt and corporate, see, flexible and rigid. For flexible, there is a certain route we design, and for rigid, we design for certain route. But during number of years, we used to construct all the buildings with asphalt. I'm not against asphalt. Asphalt has its own advantages, concrete has its own advantages. So we can look into the soil condition, traffic load, weather condition, environmental condition. We are designing this type of pavement or flexible, rigid or composite pavement is to be used. As we are talking that of rainfall, whenever there is a high tide, we all know that the high tide comes after 15-20 days or within 1 month. So whenever there is high tide, and during that high tide, rain is there, so entire water flash into the city. And when rain is there, and if the road is asphalt, it is stagnated for 4 to 5 hours till the rain stops. So asphalt can't sustain in this water stagnation for a long time. So slowly deterioration happens for the water. Without water, this is what the reason of water loss. So overall, this water problem or other issues, we had switched to concrete from 1989. We are slowly developing what expert concrete. Look after that DFC is about 5 kilometers. Till last year, concrete about 1400 kilometers. So slowly, there are advantages for this solution. Number one, when you construct any road with microplan or there is no photos. Second, the life of concrete road is far better while designing we take years and for asphalt we take 10 years. But we suggest trade sector in Mumbai. If you take example of my that is the construction course. It has last about 70 years. It has last 70 years. Even there are few roads in Bali which are more than 50 years. They are still there. There is something where there are no single losses, there are no motors. So this experience, the advantages of concrete roads and right away, we are slowly going ahead. And if we see the number of bottles every year the bottles are reducing. If you look at figures, so within a few years, Mumbai will be very bottle free. So we try all type of new technology, we try all type of materials which are available in the market. We take all these types of seminars, conferences, exhibitions. Of course, we have been one of concrete. Every year we come, our engineers come, visit different stores. We learn from all the experts, even the conferences. And after this IS 456 conference will be going on, which will be inaugurated very soon. It's a Bible for all engineers, IS 456. So, in short, we learn, we do experiments and we make things on pavements. This type of platform, this type of exhibitions, and particularly what concrete, it really helps us also, and in future also we will come with different materials and the technology. All big plants are here, all the scientists are here, all engineers are here. So our engineers can interact with them, we can share our problem, we can share what innovations we are doing with engineers around us. And that is a good platform. Every year
the footfall is last year was 10,000, I think this year it would be 80,000 plus. So it's really a nice platform to interact with all of us. I will be trying to tell some more marketing for giving us the opportunity to visit. Thank you so much. Thank you. So having heard the government side, क्या विशेष है इस बार? सो ये हमारा 12th एडिशन ऑफ वर्ल्ड ऑफ कंक्रीट है। ये एक इंटरनेशनल इवेंट है जो यूएस में होता है, जो हमने यहाँ पे लाया था। और इस साल 350 से ज़्यादा एग्जिबिटर्स इंडिया से और इंटरनेशनल आए हुए हैं। सारी नई कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो कंक्रीट से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज है, ये एक डेडिकेटेड शो कंक्रीट के लिए है। सो कंक्रीट जो रेडीमिक्स कंक्रीट हो, प्रीकास्ट कंक्रीट हो, जो आपके जो कंस्ट्रक्शन केमिकल्स हो, ये सारी नई टेक्नोलॉजीज है। जो एआई ड्रिवन सॉल्यूशंस है ये सेक्टर के लिए, सारी नई टेक्नोलॉजीज डिस्प्ले में है। एक एंड टू एंड इवेंट है, ये सिर्फ एग्जीबिशन नहीं है। यहाँ पे सारी नॉलेज दी जाती है, सारी नेटवर्किंग है। सो वी हैव लॉट ऑफ पैरेलल कॉन्फ्रेंसेस व्हिच आर गोइंग ऑन। वी हैव द सीईओ एंड सीटीओ राउंड टेबल, इनोवेशन जोन है। इस बार पहली बार हमने 30 से ज़्यादा स्टार्टअप्स आए हुए हैं और इनको इन्वेस्टर्स मीट में हम लोग इन्वेस्टर्स से मिला रहे हैं और उनको फंडिंग मिल जाएगी। सो इससे हमने बहुत सारे एंगेजमेंट्स रखे हैं ये साल। तो एक ये मक्का ऑफ कंक्रीट इंडस्ट्री हो जाए जहाँ पे सब आ जाए और सबके लिए कुछ ना कुछ ये इवेंट से मिल सके। और ये इवेंट में 18,000 से ज़्यादा इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स आने की हमको जो रिकॉर्ड हुआ अभी तक जो विजिटर्स का, उस हिसाब से गुंजाइश है हमको। सीमेंट ऑप्शन के रूप में देखा जा रहा है कुछ नए चीज़ों पर अभी कब तक काम शुरू होगा और क्या कुछ रिसर्च होगा? तो सीमेंट पे तो ऑलरेडी बहुत सारा रिसर्च हो गया है। जो अभी अब देखा जाए तो प्रीकास्ट जो है, प्रीकास्ट कंक्रीट है, रेडीमिक्स कंक्रीट है, उसके ऊपर बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी आई हुई है। बिकॉज उसमें क्या होता है कि उसका जो नेट जीरो एमिशंस की तरफ जो अपना गवर्नमेंट का गोल है उसमें अचीव हो जाए, जहाँ पे आपका कार्बन एमिशंस बहुत कम हो जाए। सो वो सारी नई टेक्नोलॉजीज ऑलरेडी है, जिससे कार्बन एमिशन ऑलरेडी अराउंड 50% कम हो चुके हैं जो पहले, अगर 5 साल पहले देखा जाए जो हो रहे थे। सो ये टेक्नोलॉजी ऑलरेडी मार्केट में है, उसके ऊपर और रिसर्च हो रहा है। अगर देखा जाए, अगर नेक्स्ट 2-3 साल में कम से कम नियरली 70-80% कार्बन एमिशन की रिडक्शन की गुंजाइश है। आने वाले 5 सालों में मार्केट कितना ग्रो करेगा? सो ये आज अराउंड $0.75 ट्रिलियन का कंस्ट्रक्शन सेक्टर इंडिया में है और ये 1.1 ट्रिलियन होने की गुंजाइश है बाय 2031। सो अराउंड 7 to 8% ग्रोथ विच इज हायर देन आवर जीडीपी ग्रोथ। सो बिकॉज इसको पुश कहाँ से आ रहा है, तो 3 रीजंस है। एक तो गवर्नमेंट का जो मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर पुश है, इंफ्रास्ट्रक्चर हर जगह पे रोड्स बन रहे हैं, डैम्स बन रहे हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, आपके मेट्रो नेटवर्क हो रहा है, वो एक बड़ा पुश है। सेकंड बड़ा पुश है हाउसिंग डिमांड, जो प्रधानमंत्री आवास योजना प्लस अपने जो हर जगह पे कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं हाउसिंग की, 1.4 बिलियन पीपल देयर स्कीम हाउस फॉर एवरीबडी। तो वो स्कीम की वजह से बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो तीसरा देखा जाए जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है, जिसमें इंडस्ट्री से पूछ आ रहा है, क्योंकि नए नए प्लांट फैक्ट्री सेटअप हो रही है, तो उसके लिए एक बहुत बड़ा डिमांड आ रहा है। सो ये बड़ा सपोर्ट हो रहा है ये सेक्टर के। थैंक यू। रजनीश सर, क्या संदेश देंगे? 12वां एडिशन है, कितनी कंपनियां यहाँ पार्टिसिपेट कर रही हैं, कितने इन्वेस्टर्स अब तक होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं सब जितने भी हमारी फ्रेटर्निटी है इस सेक्टर की, उन सबको धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत बढ़िया और बहुत बड़ा सहयोग दिया है इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाने में। ये चूँकि 12वां एडिशन है तो कुछ स्पेशल ही हमें करना था और हमने बहुत सारे स्पेशल एलिमेंट्स भी इसके अंदर डाले हैं। और लेकिन उससे पहले भी आपको स्केल के बारे में बता दूं कि ये अभी तक का सबसे बड़ा इवेंट है और 350 ब्रांड्स वर्ल्ड वाइड इसमें प्रेजेंट है, जिसके अंदर कंपनीज इंडिया के बियॉन्ड जो हैं वो हमारे पास यूएस से हैं और फ्रांस से हैं और एक पूरा यूरोपियन यूनियन का पेविलियन है। जर्मनी से 4 कंपनीज आई हुई हैं, रशिया से 1 कंपनी है और ऐसे ही इटली है, ग्रीस है और टर्की। तो इन कंपनीज का समावेश है जो ईयू पेविलियन के अंदर है। और एक चाइना से अलग, चाइना का अपना आप में एक पेविलियन है जिसके अंदर करीबन 8 कंपनीज चाइना से आई हैं, क्योंकि अब चाइना धीरे धीरे खुल रहा है और हमें उम्मीद है कि अगली बार काफ़ी बड़ी संख्या में आएंगे। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जो अभी तक का हमारा काउंट आया है वो हमारा 35% ज़्यादा है सेम टाइम फ्रॉम लास्ट ईयर। और जो नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन है, हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि इस बार तकरीबन 18,000 का हमारा एस्टिमेट है कि जो हमारे 18,000 विजिटर्स आएंगे। और लेकिन नंबर ऑफ विजिटर्स से भी ज़्यादा
जो मुझे जिसकी ज़्यादा खुशी है वो है क्वालिटी ऑफ विजिटर्स, क्योंकि हम अपने जो रजिस्ट्रेशन होती हैं उसको बैक एंड पे चेक करते हैं कि क्वालिटी कैसी आई है। तो इस बार नंबर ऑफ VIPs, नंबर ऑफ नए बिल्डर्स जो चाहे अजमेरा ग्रुप है या जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज रियलिटी सेक्टर के अंदर हैं, हीरानंदान से पूरा डेलीगेशन है, BMC से डेलीगेशन है, तो प्राइवेट और गवर्नमेंट, और प्लस जो हमारे लीड कंपनीज हैं जैसे अल्ट्राटेक है और सीका है, एशियन पेंट्स हैं, ये सब ने पिछली बारी से बड़े बड़े स्टॉल्स दिए हैं। तो ये एक चीज़ ये दिखाता है कि इंडस्ट्री तो अपने आप में ग्रो कर ही रही है, इवेंट का भी जो एक रेपुटेशन है या इंडिया का एक जो इवेंट का एक जिसे हम माइंड शेयर की बात करते हैं वो बहुत बढ़ गया है। तो नंबर ऑफ कंपनीज 350 हो गई हैं, नंबर ऑफ विजिटर्स ज़्यादा होने जा रहे हैं, और जो सबसे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेरे लिए जो है वो है कि इस बारी के जो नंबर एक्टिविटीज़ हमने फ्लोर पे रखी, जैसे आप देख सकते हैं कि पड़ोस में ही इन्वेस्टर जोन की एक्टिविटी चल रही है और स्टार्टअप पेविलियन। ये आज से पहले स्टार्टअप पेविलियन वर्ल्ड ऑफ कंक्रीट इंडिया में नहीं है। सो स्टार्टअप पेविलियन के अंदर हमारे पास 25 स्टार्टअप्स हैं और उन सबको हम मौका दे रहे हैं कि वो इन्वेस्टर्स के सामने अपनी पिच को रखें, क्योंकि वो सब ऑलरेडी इनकी स्क्रीनिंग हो चुकी है। अब वो जो पिच करेंगे तो 5 मिनट का उन्हें समय दिया जा रहा है और 2 मिनट इन्वेस्टर को दिया जा रहा है उनसे क्वेश्चन पूछने के लिए। उसके बाद हर स्लॉट के बाद लाइव वोटिंग हो रही है, और जैसे ही सेशन खत्म होता है, क्योंकि 2 दिन में 4 स्लॉट्स होंगे, प्री लंच एंड पोस्ट लंच, तो हर स्लॉट खत्म होने के बाद लाइव वोटिंग के बाद उनको जो टॉप 2 पिचेस हैं उनको फेलिसिटेट किया जाएगा और उनको इन्वेस्टर्स अपने रडार के अंदर रखेंगे, मतलब उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करने का, तो उनको फिर एक अपने इंक्यूबेटर के अंदर लेके जाएंगे। और इसी जो एक्टिविटी से इंस्पायर होके जो गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, जो इनका आई हब, इनका एक ऑर्गेनाइजेशन है जिनका काम ही स्टार्टअप्स को इस तरह के प्लेटफॉर्म देना है और फंडिंग देना है, सो वो इस शो में पहली बार आए हैं एज अ पार्टनर। तो बहुत अच्छा इवेंट है, और जहाँ पे हम लोग बैठे हैं बोर्ड रूम में, यहीं पे अभी 3 बजे आज CEO कॉन्क्लेव होगा, जिसके अंदर करीबन 25 CEOs का ऑलरेडी कंफर्मेशन आ गया है, और कल दोपहर 12 बजे इसी रूम के अंदर CTO कॉन्क्लेव होगा, क्योंकि जहाँ CEOs का इम्पोर्टेंस है वहाँ टेक्नोलॉजिस्ट का बहुत बड़ा रोल है कि ये सेक्टर, जैसे अभी आपने डॉक्टर LP सिंह को सुना या और भी प्रेस ब्रीफिंग के अंदर, कि टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड है। अब अधिकतर स्टार्टअप्स का अगर आप प्रोफाइल देखेंगे तो वो टेक्नोलॉजी के ऊपर ज़्यादा काम कर रहे हैं, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, चाहे वो IoT है, या मैकेनाइजेशन की बात हो रही है, BIM की बात हो रही है, तो और इवन प्रीकास्ट जैसा सेगमेंट जो है जिसके अंदर टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि आज इंडिया के पास 2 सबसे बड़े चैलेंज हैं, स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन और टेक्नोलॉजी एक तरफ है, लेकिन साथ साथ हमें ड्यूरेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी पे भी काम करना है। सो इन दोनों को बैलेंस करना इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा चैलेंज है, और हमारे पास समय ज़्यादा नहीं है, क्योंकि 2026 में हम लोग बैठे हैं और 2047 में मोदी जी का नारा है कि भारत को विकसित भारत पहुंचना है। तो सिर्फ 21 साल का हमारे पास समय है और बहुत आगे बढ़ना है। आज अगर आप हमारी डिजिटल इकोनॉमी को देखें तो आज भारत पूरे विश्व में 5वें नंबर पे आया है। सिर्फ 4 कंट्रीज हमसे आगे हैं, जिसमें US, जापान, US, चाइना, सिंगापुर और UK, ये 4 कंट्रीज हमसे आगे हैं डिजिटाइजेशन के अंदर। बाकी हमने कितनी एडवांस इकोनॉमी को पीछे कर दिया है, तो धीरे धीरे उसमें भी हमारा बढ़ावा, और ये सारा जो टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट है ये कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर भी आ रहा है, चाहे वो रोबोटिक्स है, चाहे वो ऑटोमेशन है, लेकिन साथ साथ जो स्किल लेबर है उसका भी यूज बढ़ता जा रहा है। तो ये लेबर के अगेंस्ट काम नहीं हो रहा, लेकिन उसी लेबर को एक मौका मिल रहा है कि अपने स्किल को और निखारने का, कि अब आप और क्या उसमें स्किल में जा सकते हैं। तो मैं कहते इवेंट को लेके ओवरऑल बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है, हमें बहुत अच्छा खुशी हो रही है कि हम इस इवेंट को कर पा रहे हैं सक्सेसफुली। और अगर आपको याद होगा लास्ट ईयर का हमारा इवेंट अक्टूबर में था, इस साल जून के फर्स्ट वीक में कर रहे हैं, तो हमें सिर्फ 7 महीने का मिला है। 7 महीने के अंदर पिछले इवेंट से 24% की ग्रोथ, और ये नई एक्टिविटीज़ का इंट्रोड्यूस, मेरे ख्याल से टीम ने बहुत खूबसूरत काम किया है, और हमारा विश्वास है कि मीडिया की ऐसी सपोर्ट हमें आगे भी मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। तो निर्माण सेक्टर को लेकर आपने भी बातें कही कि 2 लाख इंजीनियर रिसर्च कर रहे हैं, आप लोगों को ट्रेंड कर रहे हैं। आने वाले दिनों में युवा इंजीनियर इस सेक्टर में कितने आ रहे हैं? देखिए, जिस ढंग से कंस्ट्रक्शन सेक्टर की ग्रोथ है और जितनी हमें स्किल्ड मैन पावर की ज़रूरत है, अभी ये टोटल एक मिसमैच लगता है। ये बात अलग है कि जो हमारी युवा शक्ति है कंस्ट्रक्शन सेक्टर में नहीं आना चाहती है, वाइट कॉलर जॉब में जाना ज़्यादा चाहती है, लेकिन जहाँ तक जिस गति से ये सेक्टर ग्रो कर रहा है और जितनी हमें ट्रेंड इंजीनियर्स की ज़रूरत होगी,
वो अभी नहीं है। तो इसीलिए हम लोग, हमारा जो इंस्टीट्यूशन है नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट एंड बिल्डिंग मटेरियल, हम लोग कैपेसिटी डेवलपमेंट के तौर पे जो है बहुत ज़्यादा काम करते हैं, जिसमें हम इंडस्ट्री के जो इंजीनियर्स हैं उनको भी ट्रेनिंग देते हैं, जो फील्ड इंजीनियर्स हैं उनके लिए भी ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं। ये तो एक हुआ कि जब जो हमारे यहाँ आता है हम उसको ट्रेनिंग देते हैं। अब हमने अपनी स्टाइल को पिछले लगभग 6 महीनों में चेंज किया है। हमने अल्ट्राटेक सीमेंट के साथ, हमने अदानी के साथ, अभी हम श्री के साथ भी करने जा रहे हैं। हम इन बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, क्योंकि इन सारे इंस्टीट्यूशंस की जो इंडस्ट्रियल हाउसेस हैं इनकी अवेलेबिलिटी पैन इंडिया लेवल पर है। तो हमने इनके साथ कोलैबोरेट किया है, और ये लोग जो ट्रेनिंग प्रोग्राम देते हैं उसमें हमारे इंजीनियर्स जाते हैं जो ज़्यादा अच्छी टेक्निकल ट्रेनिंग्स जो है उनको दे रहे हैं। तो जो हमारा ट्रेनिंग में, जहाँ पर हम अपने इंस्टीट्यूशन में लगभग, मैं कहूँ अगर हम 1000 लोगों को पर ईयर दे पा रहे थे, अब हम कहीं ना कहीं 1 लाख लोगों को पर ईयर ट्रेनिंग देने की कोशिश कर रहे हैं, एंड दैट इज़ द मोटिव। और जब हम उनको वहाँ पर एक ऑन साइट ट्रेनिंग देते हैं तो उनको ये भी पता चलता है कि अगर इस एरिया में और ज़्यादा डीपर ट्रेनिंग चाहिए तो देयर आर इंस्टीट्यूशन लाइक NCCBM एंड दे कैन अप्रोच अस। तो इस सेक्टर में आगे कितना ग्रोथ होगा, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जैसे कि देखिए, लगभग 500 मिलियन टन का सीमेंट का उत्पादन हमने पिछले साल किया। जो प्रोजेक्शंस हैं उसके हिसाब से लगभग 2047 या 2050 तक लगभग हम 2100 मिलियन टन, और 2070 तक लगभग 2800 मिलियन टन तक हम लोग पहुंच जाएंगे। तो जो ग्रोथ है कि आप देखिए, लगभग अगले 20-25 साल में हम 4 गुना हो जाएंगे। तो जो हमारा ग्रोथ पैटर्न है, और सीमेंट तो इंफ्रास्ट्रक्चर का बैकबोन मटेरियल है। अगर सीमेंट की ग्रोथ हो रही है इसका मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ हो रही है। तो ट्रिमेंडस ग्रोथ होने जा रही है सीमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में। और जैसे ग्रोथ होती जा रही है तो हमें सारे के सारे पेरिफेरल चीज़ों की भी जरूरत पड़ेगी, हमें कंस्ट्रक्शन केमिकल की भी जरूरत पड़ेगी, हमें एग्रीगेट्स की भी जरूरत पड़ेगी, नए नए इनोवेशंस भी इसमें आएंगे, RMC प्लांट्स भी हमारे यहाँ बढ़ेंगे। तो सारे पेरिफेरल सेक्टर्स की भी ग्रोथ होगी, उसके लिए ट्रेंड मैन पावर की भी ज़रूरत होगी। तो हम इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर वी आर गोइंग टू ग्रो इन टोटलिटी। क्वालिटी कंट्रोल पे उतना ध्यान दिया जाए, क्योंकि काम तो बहुत हो रहा है लेकिन इसमें कमियां भी कई जगह ज़्यादा होती हैं। क्वालिटी कंट्रोल पे तो बहुत पर्टिनेंट सवाल है। हमारे जो कंक्रीट टेक्नोलॉजिस्ट है या कंक्रीट हम डालते हैं उसके ऊपर एक IS का कोड होता है, IS 456, जो पिछली बार 2000 में आया था। अब 25-26 साल बाद हम उसको रिवाइज कर दिया है, उसका ड्राफ्ट रिवीजन आ गया है, और इस नए ड्राफ्ट में स्पेशल एम्फेसिस दिया गया है क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस के ऊपर। अगर मैं पुराने IS कोड की बात करूंगा तो पुराने IS कोड में कुछ ही पैरामीटर्स को हमने कनेक्ट किया था। अब हमने उसमें ड्यूरेबिलिटी के पैरामीटर्स की लिमिट्स बना दी हैं। पहले हम कहते थे ड्यूरेबल बनाएंगे, लेकिन अब हमने उन लिमिट्स को भी बना दिया है कि पहले हम लोग M50 ग्रेड की कंक्रीट तक की बात करते थे, अब हम कस्टमर के हिसाब से, उसको हो सकता है कि 100 साल के लिए स्ट्रक्चर चाहिए तो M50 ग्रेड, 50 से 75 ग्रेड, 75 to 100 ग्रेड और 100 प्लस, डिपेंडिंग ऑन द क्लाइंट रिक्वायरमेंट। ये सब चीज़ें हमने नए IS कोड में इंट्रोड्यूस कर दी है, नंबर 1। नंबर 2, साइट पर और जो प्रैक्टिसिंग इंजीनियर्स है उनको कैसे पता चले ये सब क्या होने जा रहा है। तो इसके लिए हमने अक्रॉस द कंट्री हम ट्रेनिंग प्रोग्राम करने जा रहे हैं, और हम ही नहीं करने जा रहे हैं, BIS भी करने जा रहा है जो इस इंडियन स्टैंडर्ड को ला रहा है। तो हम एक प्रोग्राम ऑलरेडी पिछले महीने दिल्ली में कर चुके हैं। आज यहाँ पर एक पैरेलल सेशन चल रहा है जिसमें हमारे NCCBM के 3 कुलीग श्री PN ओझा जी, श्री अमित त्रिवेदी जी और डॉक्टर ब्रजेश 3 लेक्चर्स दे रहे हैं, जिसमें डॉक्टर ब्रजेश स्पेशली स्पीकिंग अबाउट ऑन क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस।